لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلا تاخیر و تمہید آئیے مراد مل کر گنبد خزران میں آرام فرمانے والے آقا و داتا مولا و ملجا مدنی دولہ سرکار دو جہاں مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت و نبوت کی ہدیہ درود سارا مجمع بآواز بلند اپنے لب و لہجے میں پڑھے اللہم مولانا محمد وعلا آلہ سیدنا مولانا محمد حبیبنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تجھ کو کیا دیں گے یہ شاہ دوسرا پر چھوڑ دے. کہیے سبحان اللہ. تجھ کو کیا دیں گے یہ شاہ دوسرا پر چھوڑ دے تو غلام ان کا ہے بس ان کی عطا پر چھوڑ دے. تو غلام ان کا ہے بس ان کی عطا پر چھوڑ دے. اور تو اپنی بخشش کے لیے سوچنے والا ہے کون؟ تو اپنی بخشش کے لیے سوچنے والا ہے کون؟ مصطفیٰ کا کام ہے یہ مصطفیٰ پر چھوڑ دے. مصطفیٰ کا کام ہے یہ مصطفیٰ پر چھوڑ دے. تجھ کو کیا دیں گے یہ شاہ دوسرا پر چھوڑ دے تو غلام ان کا ہے بس ان کی عطا پر چھوڑ دے. حضرات حصول برکت کے لیے ایک بار بآواز بلند درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات ہم آج بڑے خوش نصیب ہیں کہ آج کی رات شب معراج کی رات ہے. بڑے خوش نصیب ہیں. مجھ سے پیشتر خطبہ و شورا آئی اور آپ سے کہے کہ آج کی رات آپ درود پاک کی ورد کرتے رہیں, درود پاک پڑھتے رہیں. حضرات میں نے کلام پاک کی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ العزت و عزت اللہ کے لیے ولی رسول ہی اور اس کے رسول کے لیے وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور تمام مومنوں کے لیے وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ منافقوں کو شعور نہیں, وہ جانتے نہیں کہ اللہ کا عزت کیا ہے, اس کے رسول کا عزت کیا ہے اور تمام مومنین کی عزت کیا ہے. وہ لوگوں قرآن کہہ رہا ہے آپ کی عزت کے بارے میں لیکن آپ نہیں جانتے کہ آپ کی عزت کیا ہے, اس لیے کہ ہم قرآن کی تعلیم کو بھلا دیا ہے, اللہ اس کے رسول کے فرمان کو ہم نے چھوڑ دیا ہے, اس لیے ہر جگہ ہم مارے اور کاٹے جا رہے ہیں. لیکن وہ لوگوں آپ مجھ سے پیشتر جو بھی آئے درود پاک کی فضیلت کے بارے میں بتاتے گئے. میں بس چند میں آپ کے سامنے آیا آپ کو میں بتا دوں کہ درود پاک کی فضیلت کیا ہے. حضرات وقت کے بہت بڑے عالم دمشق کی سرزمین پر جن کا نام شیخ محمد بن سلیمان جزولی ہے. حضرات یہ وہ عالم دین ہے جن کا ڈنکا سرزمین دمشق کے اندر تھا, سرزمین دمشق کے اندر جن کا ڈنکا بجتا تھا, جن کی آواز تھی لوگ جانتے تھے. حضرات ان کی شہرت تھی دمشق کی سرزمین پر. لیکن وہ لوگوں حضرت سلیمان حضرت شیخ محمد بن سلیمان جزولی ایک وقت یعنی اپنے گھر سے نکلتے ہیں اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں عصر کا وقت قریب ہوتا ہے, اس لیے کہ عصر کی نماز ادا کرنی ہے. حضرات ادھر ادھر تاکتے ہیں, ادھر ادھر جھانکتے ہیں. پانی کی ضرورت ہے کہ پانی مل جائے, وضو کر لوں اور عصر کی نماز ادا کر لوں. لیکن اے میرے قوم کے دیالو مسلمانوں سنو, ادھر
इधर उधर ताकने और झांकने के बाद उसे एक कुआं नजर आता है। कुएं के करीब जाता है। शेख कुएं के करीब जाने के बाद देखता है कि कुएं के करीब न डोल है न रस्सी है। उनके करीब एक मकान है। उस मकान के छत पर एक बच्ची यानी खड़ी है। हजरात, वक्त के इतने बड़े आलिम इधर उधर ताकते हैं और रस्सी और बाल्टी की जरूरत है, इसलिए कि कुएं से पानी निकालना है। ऐ मेरे कौम के दयालु मुसलमानों, हमारी भी जरूरत पड़ती है जब पानी की। कुएं के करीब तो हमें भी रस्सी और बाल्टी की जरूरत पड़ती है। लेकिन इधर उधर जब झांकने लगे, छत के ऊपर से कम उम्र की बच्ची ताकती है, देखती है, कहती है बाबा आपको किस चीज की तलाश है? ऐ बाबा आप किस चीज को ढूंढ रहे हैं? हजरात, वक्त के शेख ने कहा बेटी मुझे पानी की जरूरत है और कुएं से पानी निकालने के लिए रस्सी और बाल्टी की जरूरत पड़ती है। हजरात, कम उम्र की बच्ची छत के ऊपर से कहती है बाबा आप अपना नाम तो बताइए। हजरात, वक्त के बहुत बड़े आलिम कहते हैं बेटी मेरा जो नाम है शेख मोहम्मद सुलेमान बिन जुजूली है, मैं दमिश्क का रहने वाला हूँ। हजरात, बच्ची ने वो नाम सुन रखा था कि दमिश्क की सरजमीन पर जो शेख मोहम्मद बिन सुलेमान जुजूली है, इतने बड़े आलिम है जिनकी शोहरत जिनका डंका दमिश्क की सरजमीन पर बनता है। हजरात, वो बच्ची कहने लगी बाबा आप इतने बड़े आलिम होने के बावजूद जब कुएं से पानी निकालना चाहते हैं तो आप रस्सी और बाल्टी की जरूरत पड़ी है आपको। हजरात, बच्ची कहती है आपको बाल्टी और रस्सी की जरूरत पड़ गई, मुझे समझ में नहीं आता। हजरात, वक्त के इतने बड़े आलिम कहते हैं बेटी वो कौन हो जिसे बाल्टी और रस्सी की जरूरत नहीं पड़ती? तो कहती है मेरी समझ में नहीं आता। बुखारी तो मैं समझती हूँ, बुखारी तो मैं समझता हूँ, कुरान तो मैं समझता हूँ, कुरान व हदीस को तो मैं समझता हूँ, फलसफा को तो मैं समझता हूँ। अरे बेटी बेगर बाल्टी और रस्सी से पानी नहीं निकलता। हजरात, तो उम्र की बच्ची कहती है बाबा मैं आपको कुएं से पानी निकाल के दिखाती हूँ। हजरात, बेगर रस्सी और बाल्टी के किस तरीके से पानी निकाल दे। हजरात, तो उम्र की बच्ची छत के ऊपर से कुएं के तरफ देखती है, कुएं में थूकती है, यानी थूकना ही था, कुएं से पानी उबलता हुआ पानी बाहर आ जाता है। हजरात, वक्त के इतने बड़े आलिम देखते ताज्जुब करने लगते हैं कि अल्लाहु अकबर कबीरा, इस बच्ची को इतना मकाम कैसे मिल गया, इतनी बुलंदी कैसे मिल गई? हजरात, बच्ची से शेख पूछते हैं बेटी इतना बड़ा मकाम, इतनी बुलंदी कैसे मिल गई? हजरात, कम उम्र की बच्ची कहती है बाबा जब मैं सोती हूँ ना मेरी माँ कहती है बेटी अपने नबी पर दुरूद पढ़ ले। जब मैं जागती हूँ ना मेरी माँ कहती है बेटी नबी पर दुरूद पढ़ ले। जब मैं दिनों रात इमामुल अंबिया के बारगाह में दुरूद पढ़ती रही, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये मकाम अता कर दिया है। लेकिन वो लोगों आज हमसे दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा जाता है तो हम कतराते हैं, लेकिन वो लोगों दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ते रहिए। दुरूद शरीफ पढ़ने से दिल साफ होता है, दुरूद शरीफ पढ़ने से दिल साफ होता है, परेशानियां दूर होती है। तो आइए हम रात में बाबा बुलंद बिहार और बंगाल के लहजे को इस्तेमाल करते हुए बाबा बुलंद दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद वदारे सय्यदिना हबीबना शफीअना सय्यदना मौलाना वदारे सय्यदना मौलाना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इज्जत अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए और तमाम मोमिनों के लिए। वो लोगों हम आप जलसा में आते हैं, यहाँ से पैगाम आपको दिया जाता है कि आप अल्लाह उसके रसूल और बुजुर्गान दिन के पहलू फेर पर आप अमल करने की कोशिश करें। लेकिन वो लोगों आज तक हम जलसे में जाते रहे, लेकिन जलसे के बारे में वहाँ की महफिलें मिला दे, महफिल के बारे में हमें पता नहीं, वहाँ के बारे में हमें मालूम नहीं कि इस मकाम को अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी ऊंचाई पर रखा है, इस मकाम की फजीलत क्या है जहाँ अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो। हजरात, हम और आप जानते नहीं हैं। तो लोगों आप अगर जान जाएंगे तो जलसे के नाम पर आप आकर के बाजार में नहीं घूमेंगे, इधर उधर नहीं टहलेंगे, सीधा जलसे
हजरात जलसे में आकर के आप बैठ जाएंगे, अल्लाह उसके रसूल की जिक्र को आप सुना करेंगे। हजरात ऐसे ही इमाम अंबिया के बारगाह में साहबा ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, जब दुनिया वालों के पास जाता है तो कुछ न कुछ मिलता है, लेकिन या रसूल अल्लाह आपके महफिल पाक में आने वालों को आप क्या अता करते हैं? किस लिए? क्यों या रसूल अल्लाह? जब दुनिया वालों के पास जाता है तो कुछ न कुछ मिलता है, लेकिन आपके महफिल पाक में आने वालों को आप क्या अता करते हैं? हज़रात साहबा का कहने का मकसद और मंशा ये था कि जब दुनिया वालों के पास जाता है तो कुछ न कुछ मिलता है, मतलब ये कि खाने के वक्त जाता है तो उसे खाना खिलाया जाता है, पानी पिलाया जाता है, नाश्ता करवाया जाता है, लेकिन इमाम अंबिया के बारगाह में साहबा कहते या रसूल अल्लाह, जब दुनिया वालों के पास जाता है तो कुछ ना कुछ मिलता है, लेकिन आपके महफिल पाक में आने वालों को आप क्या अता करते हैं? हज़रात इमाम अंबिया इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे दीवानों सुनो, दुनिया वाले अपनी हैसियत के मुताबिक दुनिया का माल देते हैं और हम अपने महफिल पाक में आने वालों को जन्नत का मेहमान बना देते हैं। घूमने वालों, आप अपने अंदर झांक करके देखो कि आप है क्या। इसलिए कि कुरान पाक में इरशाद फरमाया रब तबारक व तआला ने, वलिल्लाहि इज्जतु व लिरसूलिही व लिलमुमिनीना, इज्जत अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए और तमाम मोमिनों के लिए। हज़रात जब आप अपने अंदर झांक करके देखेंगे तब आपको पता चलेगा, इसलिए कि आप अल्लाह उसके रसूल के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना छोड़ दिया है। आज से चंद साल पहले आप अपने अंदर झांक करके देखिए, आज से 10 या 15 साल पहले आपके मस्जिद के सामने कुफ्फार मुशरिकीन की औरतें प्याली और कटोरा लेकर के खड़ी रहती थी कि मुसलमान नमाज पढ़ के निकले और मेरी प्याली में फूंक दे, पानी के अंदर दम कर दे, हम जाए अपने घर। किस बुनियाद पर? कहने वालों ने उनसे पूछा था कि ऐ कुफ्फार मुशरिकीन की औरतें, तुम मस्जिद के दरवाजे पर पानी की कटोरा और प्याली लेकर के किस लिए खड़ी हो? हज़रात आज से 15 साल पहले वो औरतें कहती थी कि दुनिया के तबीबों के पास हम गए हैं, दुनिया के तबीब ने कहा ना इलाज, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। दुनिया के तबीबों के पास गए, दुनिया के हकीमों के पास गए, दुनिया के डॉक्टरों के पास गए, सबने इस बीमारी का इलाज बताया, जो कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। हम इसलिए मस्जिद के दरवाजे पर आए हैं कि मुसलमान नमाज पढ़ के निकले और कुरान की आयत पढ़ के इस पानी पर दम कर दे। जब दम कर देंगे हम अपने घर जाकर के अपने बच्चों को इस पानी को पिला देंगे तो मेरा बच्चा शिफायाब हो जाएगा। ओ मेरे कौम के नौजवानों, ऐ मेरे कौम के दयालु मुसलमानों, आप अपने अंदर झांक करके देखो कि मोमिनों का रुतबा और बुलंदी क्या है। हमने अपने आप को भुला दिया है, उसीलिए हम मारे जा रहे, उसीलिए हम काटे जा रहे। लेकिन ओ लोगों, आज भी आप अगर अपने अंदर झांक करके देखेंगे तो लोगों याद रखना, आपके लोग कदम चूमता हुआ नजर आएगा। हमने हर चीज को भुला दिया है, बुजुर्गान दिन के पालों फेर को भुला दिया है, बड़ों की अदब को भुला दिया है, छोटों पर शफकत करना भूल गए हैं, छोटों पर शफकत करना भूल गए हैं, माँ बाप की खिदमत करना भूल गए हैं। हज़रात ये कम वक्त में आपको मैं बता दूं, जिन लोगों के माँ बाप मौजूद हो, याद रखना तुम अपनी माँ बाप की खिदमत कर लेना, इसलिए कि चंद दिन की जिंदगी है। अब दुनिया सिजनुल मुमीन और जन्नतुल काफिर, दुनिया मोमिनों के लिए कैदखाना है, काफिरों के लिए जन्नत है। चंद दिन के अंदर अपनी जिंदगी में माँ बाप मौजूद हो तो उनकी खिदमत करके दुनिया व आखिरत को सवार लेना। अगर तुम्हारी माँ बाप इस दुनिया से गुजर गए हैं तो उनके हक में सारी सवाब करता रहना, इसलिए कि आखिरत में उनका यानी उनको जन्नत मिल जाए। लेकिन वो लोगों, आज हमारे पास पैसा हो जाता है, रुपया हो जाता है, बैंक बैलेंस इकट्ठा कर लेते हैं, अपनी बीवी अपनी शरीक हयात को लेकर के हम ऐश की जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन याद रखना, जिनके माँ बाप मौजूद हो, ठंड का मौसम है, हज़रात उन्हें अगर कंबल की जरूरत है आप उनकी खिदमत करें, उन्हें कपड़े की जरूरत है आप उनकी खिदमत करें, इसलिए कि यही तो चीज आपकी काम आने वाली है। लेकिन वो लोगों, माँ बाप को एक तरफ हम छोड़ देते हैं। आओ मैं तुझे बताता चलूं आपको, इसलिए कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक साहबी वो है जिनका नाम हजरत अल्कमा है। लेकिन वो लोगों, आज हम क्या करते हैं, माँ बाप को सताते हैं, माँ बाप के ऊपर जुल्म और ज्यादती करते हैं, माँ बाप के साथ बर्ताव यानी उसके साथ बदइखलासी से पेश आते हैं। लेकिन वो लोगों,
سرکار کو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی